So this question was asked in an interview, and if you visit the site Lead Code, which site, they give you such programming exercises. So the exercise is there's an array of integers, which so if there are five numbers, it'll have five indexes starting from zero. You'll be asked to take any number, any integer number. You'll be asked, or they'll give you. So what is the input number over here? 13. What you have to display is those two indexes of those two numbers, which when added will form 13. So here if I give the input as 13, output is 2 and 11 makes 13 addition. So index of 2 is 0, index of 11 is 2. So our output should be 0 comma 2. What if I would have given 21? Now if this is my input, which two are forming 21? 2, 7 and 11. No, two numbers, Only 11 and 10. Sum of only the sum of two numbers, not all. What? 2 comma 4. Okay. And if I give, let's say, 100, is there anything forming 100? So you should throw no such data exists. Got it? Is the question clear? Now we will do this without map first, and then using with map, so that you know how map will reduce the time complexity. Okay, so what logic will you apply over here? If you just know basic programming, so I know basic for loop and if conditions, I know that's all. So you can apply that also, and you can find a solution for this. So think. So the first solution which we can apply without using any map exercises, take two for loops. Take to watch for loop. So index will start from where? I will go till the, let's say this array name is ARR. Array name is ARR. So we'll go till the length of the array, right? So you can have for I equals to 0, I less than what? ARR dot length and I plus plus. So the I iteration will go from where to where? 0 to 4. So my I is pointing over here, right? First sense mein, correct? Now what I want is my I is over here. Now I want to add I with J. So first let's add 0 with 1, then 0 with 2, then 0 with 3, then 0 with 4, and let's see if we can get that figure. Let's say this figure, input number 13, is your sum. What is this called as? What is the variable name? Sum. Okay, so what we can do over here is we need one more loop, right? J loop. So I will add I with J, and J will go from here. J will start from 1 and will keep on incrementing, and then I will see index I is stationary, right? The first for loop I will be stationary because I is the outer loop and J will be the inner loop, correct? So where will J start from? It will start from 1. So will be J will be one step ahead than I. Simple as that. J will be one step ahead of I. So it will be what? J will be I plus 1, and J will also go till 4, right? So J will also be less than array and J plus plus. And now what will we do? If the ARR of I plus the ARR of J is equal to sum, then what to do? Then return that. Then what do you do? You'll make a new integer. What will you do? New integer array you will create, okay, like this, and then
that integer array will have what? Will have the values of I comma j. Am I understood? So you'll create a new integer and will return that. What will we do? And we will return this array. So we'll write this in a function. We'll write this in a function. Let's say display function. ओके जस्ट और लेट्स राइट लीड कोड फंक्शन. फंक्शन का नाम दे देंगे लीड कोड. वो दो आर्ग्यूमेंट लेगा. एक तो क्या ARR लेगा जो कि इंटीजर एरे है और एक सम लेगा. और क्या रिटर्न कर रहा है? इंटीजर एरे रिटर्न कर रहा है. आया तो समझ में? ये इफ है. तो अगर कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाता है तो वो रिटर्न कर देगा. ठीक है. और हम लोग फिर ये सब लूप टूट जाएंगे. अगर ये फॉर लूप एंड तक चला है, एकदम एंड तक, मतलब काना का ब्रेक नहीं हुआ है, तो हम लोग क्या कर देंगे? एक एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे. फिर यहाँ we'll have to make a user defined exception. Okay, let's keep that aside meanwhile. So this is a function. What is the function name? What is it taking as an argument? The array which has the values. This is that array, and the sum which we want the sum to be, and the sum over here is 13. So let's start. I start from 0. I'll go to the length of the array I plus plus. So where is the value of I right now? 0 index. J starts from I plus 1. So J is where? 1. So and the sum is 13, right? Sum is what? So what is I at 0 index? What is at 0 index? 2. So what is at J index? 2 plus 7. Is it 13? No, will not go in this if. Then J plus plus. Where will J go? Here. Now what? 2 and 11. Is it true? Yes. So now this condition is true. It will make a new array. New of which values? Huh? What is the value of I and J? 0 and 2 will return it. So the function which is calling lead code should have an array receiving at the LHS, right? So if in my PSVM, where in my PSVM I will call lead code, right? Yes, no, maybe. Okay. Directly I can do what? I can just do system.out.println, and we will call which function? Lead code. So now we need these two arrays, right? So integer ARR is 2, 7, 10, and integer sum equals to 30, and now pass these as arguments. So void में क्या किया हमने? लीड कोड फंक्शन कॉल किया. क्या पास किया उसको? एरे और सम. वो जो रिटर्न करेगा वो किधर आ जाएगा? इस प्रिंट में. इसमें आ जाएगा इस प्रिंट में, और वो डिस्प्ले हो जाएगा. करेक्ट? यस, नो, मे बी. ओके. और वो जो डिस्प्ले ऐसे नहीं होगा, वो उसको arrays डॉट टू स्ट्रिंग करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो वो एरे एसओपी में डिस्प्ले होगा. ऐसे होता है. तो वो जो आएगा ना वैल्यू 0 और 2, क्या आएगा? 0 और 2 वैल्यू आएगा ना इधर, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप वो है ना. तो उसको आपको एसओपी में डिस्प्ले करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? उसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा.
प्रिंट एलन को चाहिए स्ट्रिंग में वैल्यू, क्या चाहिए? व्हाट डज प्रिंट एलन डू? प्रिंट एलन डज लाइक दिस, राइट? उसको प्रिंट किस में करना होता है? स्ट्रिंग में। आप उसको एक एरे भेज रहे हो, क्या भेज रहे हो? आपने इसको क्या भेजा? व्हाट इज दिस रिटर्निंग? एरे। तो इस फंक्शन का रिप्लेस किसने कर दिया? उस एरे ने। क्या? 0,2। अब वो आपको डिस्प्ले किस में करना है? प्रिंट एलन में। क्या करना पड़ेगा आपको? उसको arrays dot to string में कन्वर्ट करना पड़ेगा. Am I understood? Is this clear? So now let's try to run this code in Eclipse. Okay. So I have. Let's make a fresh one. New. Okay. Java project. Lead code. Some example. यहाँ पर गए, बना रहा है, is preparing that project. So I made a new class in the default package by the name lead code. In this class, first we will write what? Public static void main string args. This is the main function. What will you do in the main function? We'll take a array, and what values do you want in it? Tell me. 2, 5, 11, 15, 10, whatever. Okay. Then we'll have an integer some value, and you can hard code it or take from user. That should not be a problem. Correct. Now what are we calling? A function called as lead code sum. What is the function name? And what will you pass to it? The array and the sum. Yes, no, maybe. This function will return an integer. Will return an integer array. This function will return a. ठीक है. Now keep this for marination over here. ठीक है. यहाँ तक उसको छोड़ दो इसके हाल पे. अब जाओ नीचे एक फंक्शन लगेगा. ओके. देखो यहाँ समझो. यहाँ पर हमको मेन से हम लोग फंक्शन कॉल कर रहे हैं. तो दिस फंक्शन शुड बी स्टैटिक. दिस फंक्शन शुड बी, बिकॉज मेन बाहर का सिर्फ क्या कर सकता है? स्टैटिक डेटा एक्सेस कर सकता है. तो वो नहीं चाहिए आपको. तो लीड कोड का जरा ऑब्जेक्ट बना दो. लीड कोड LC इज न्यू लीड कोड, और फिर उस LC से कॉल करो तो प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि LC अभी कहाँ बना है? मेन के अंदर. ओके. अभी फंक्शन आपने को बनाना है इधर मेन के बाहर. तो नाम क्या फंक्शन का? लीड कोड सम. क्या ले रहा है आर्ग्यूमेंट? एरे और इंटीजर सम. व्हाट विल दिस रिटर्न? इंटीजर एरे, राइट? तो इंटीजर एरे रिटर्न कर रहा है. आया समझो तुम लोगों को? तब वो कोड यहाँ कॉपी करके पेस्ट कर देंगे जो अपना लिखा था जरा फॉर लूप वाले. इफ क्लोज फॉर क्लोज फॉर क्लोज. तो यहाँ अपने को आई और जे लगेगा. ओके. क्या बोल रहा है? Cannot invoke length on the array type int. हाँ. ओके. एरे लेंथ स्ट्रिंग के लिए रहता. लेंथ किसके लिए रहता? स्ट्रिंग का लेंथ निकालने के लिए. अपने को एरे का लेंथ निकालना है, तो लेंथ फंक्शन ही लेंथ कीवर्ड था. ओके. तो रिटर्न कर रहा है इंटीजर ये. अब ये जो इसने रिटर्न किया वो कहाँ जाएगा? फिर डायरेक्टली इधर आएगा.
और अपने को क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले के क्या करेंगे अपन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्लस है, ओके, आउट डॉट प्रिंट एलएन। ओके, अब ये एरे प्रिंट करेगा क्या, प्रिंट एलएन, तो क्या करेगा, उस एरे को स्ट्रिंग में करना पड़ेगा। तो क्या करने का, एरेज डॉट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देने का इसको, जो अपन कॉल कर रहे हैं। और इससे कॉल कर दिया, और ये तीसरा ब्लॉक, मेक सेंस, क्या हो गया, ये एक दो और ये तीन है ना, तो वो स्ट्रिंग का भी तो है, और इसको यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गया है, तो ये एक दो और ये तीन। अभी क्या कर रहा है, मस्ट रिटर्न टाइप इंटीजर, ओके, मस्ट रिटर्न टाइप इंटीजर, मस्ट, तो दिस रिटर्न टाइप इंटीजर ना, तो रिटर्न कर तो रहा है ये, ओके, ये रिटर्न टाइप यहाँ पर लिखा है हम लोग ने, फंक्शन इज रिटर्निंग अ टाइप, बट रिटर्न कर रहा है पूरा अंदर, इफ के अंदर, इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन। अगर नहीं आया तो यहाँ पर करना है थ्रो न्यू इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन, उसमें फिर मैसेज देना है नो सच डेटा। Okay, now right click on this, run as Java application, and now it should show you what 13 के सम कौन से, 0 और 2, कौन सा है, 0 2 आ गया। Okay, now if I change the sum to 26, if I change the sum to what, 26, तो क्या होगा, हाँ, 0 1 2 2 and 3 आया। सो ये हमने बगैर किसी लॉजिक, इसको होते हैं ब्रूट फोर्स, क्या दिमाग में लगाया, बस हर एक को हर सबसे कंपेयर किया, ब्रूट फोर्स लॉजिक लगाया। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O n स्क्वायर, क्या है कि जितने बार नंबर है उतने स्क्वायर टाइम वी आर चेकिंग, जो प्राइमरी ऑपरेशन है कंपैरिजन, वो कितने बार हो रहा है, n इंटू n टाइम, n स्क्वायर टाइम, तो n स्क्वायर से अगर कोई कम अपने को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे तो वो उससे अच्छा है, तो वो मैप से करेंगे, किसे करेंगे, मैप से, जो इससे अच्छा देगा। ठीक है, आया समझ में, तो अब इसी प्रोग्राम को मैप इंटरफेस लगा के करेंगे। ओके, अभी मैं सम कर दूं 100, क्या कर दूं सम में, तो ऐसा कुछ है 100 जो सेटिस्फाई कर रहा है, तो डायरेक्टली कहाँ जाएगा, लास्ट पे जाएगा, बोला ऐसा कोई डेटा हमको मिला ही नहीं, नो सच डेटा फाउंड, तो अपन उसको हैंडल करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था अपन ने, हैंडल। तो हैंडल कैसे करेंगे उसको, देखो ये क्या बोल रहा है, मैं इस टाइप का थ्रो करता हूँ, है ना, तो जब अपन ने इसको कॉल किए थे, या फिर क्या कर सकते हैं, थ्रोस, क्या कर सकते हैं इधर, थ्रोस, किस टाइप का एक्सेप्शन, कौन सा एक्सेप्शन है वो, इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, क्या है ये, थ्रोज व्हाट, illegal argument exception. Okay, and now whenever we are calling this function we have to invoke this in try catch,
We have to invoke this in try catch into the handling over here. तो यहाँ पर जब इसको इन्वोक करेंगे तब उसको हैंडलिंग करेंगे। नो सर डेटा फोन यहाँ पर तो आ रहा है वो, एक्सेप्शन हैंडलिंग लगाना पड़ेगा। हाँ वो लगाना पड़ेगा एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, फिलहाल इसको साइड में रखो उसको। अब इसको मैप इंटरफेस से कैसे करेंगे, यही क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन ये है, इसको अभी मैप से कैसे करेंगे। Resume. So now let's do the same example using hash map. So I go to new Java project, and this was lead code. Some example, lead code array sum using hash map. सोर्स कोड में गए, न्यू पे गए और एक क्लास बना दिए lead code hash map. Done. Now first thing first, we can copy this main वाला part जिसमें हमने array दिया है, वो सब दिया है। इसमें हमने जिस पार्ट को we can copy ना main का, this will remain same, right? So क्लास क्या बनाया है, lead code hash map. ओके, तो ये क्या करा आपने, lead code hm का ऑब्जेक्ट बनाया, is new lead code hm. Now this array and this, now I will what will I do with this array now? इसके इंडेक्सेस और इसके वैल्यूज अनुक्रम में एक हैश मैप है इसमें। तो वैल्यूज क्या बनेंगे और इंडेक्स क्या बनेंगे, तो ये मेरे एरे के वैल्यूज है, एरे के इंडेक्स है ना, तो मेरे हैश मैप में ऐसे होंगे। समझ रहा है? तो मेरा की क्या है, की क्या है, वैल्यूज, एरे के वैल्यूज, और मेरा वैल्यू क्या है, एरे के इंडेक्स। मेक सेंस? so I'll make a hash map. तो हैश मैप बनाने के लिए मैं क्या करूं, मैप, और क्या है अपने की भी क्या है, इंटीजर है, और वैल्यू भी इंटीजर है। तो कैन आई डू इंटीजर कॉमा इंटीजर और hs इक्वल्स टू न्यू हैश मैप यस नो मे बी। इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा यूटिल वाले पैकेज में से। अरे समझा कि नहीं समझा, नहीं समझा? अरे हैश मैप क्रिएट किया ना, अपने को ये स्टोर करना है कि नहीं करना है? तो ये सब किस में जाएंगे, एचएस में जाएंगे। किस में जाएंगे, यस नो मे बी। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब मुझे इसमें इंसर्ट करना है, कितने वैल्यू इंसर्ट करना है, 5 वैल्यू। तो 5 तक कौन चलेगा मेरा, 5 तक कौन चलेगा, यस नो मे बी। और क्या करेंगे, एचएस में क्या करेंगे, पुट ना, और की क्या है, की क्या है, वैल्यू। तो क्या ARR का आई, और वैल्यू क्या है, अरे इंडेक्स इसके पास है। तो ये लूप खत्म होने के बाद में मेरा एचएस बन जाएगा। समझ में आ गया, सिंपल है। अब तक मैंने फिर भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं क्रिएट किए। यस नो मे बी, कोई शक?
थोड़ी जूम हो सकती है। आपने को ये सब फंक्शन में लिखना है ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग आर्ग्स, ये राइट, ये एक मेन फंक्शन हो गया और ये एक फंक्शन हो जाएगा कौन सा, पब्लिक लीड कोड सम नाम से, क्या नाम से, लीड कोड सम, ये भी एक फंक्शन होगा अपना। तो नाउ वी कैन प्लेस द वैल्यूज। ओके देखो ये कोड मेन का था, मेन हम लोग एरे लेते हैं, मेन के अंदर सम लेते हैं, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उस ऑब्जेक्ट से हम लोग क्या करते हैं, ये फंक्शन को कॉल करते हैं, राइट, क्या पास करते हैं उसको, ARR और सम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटीजर ARR और इंटीजर सम। So far so good. Now it will return, then things will fall into place. करेगा, चेक करेगा ना वो, and this will return as an integer array, right? Okay. तो अपन ने क्या किया सबसे पहले, पब्लिक void, पब्लिक वार्ड में जैसे लिखते हैं। ठीक है, तो क्या करें, मैप को अपन ने बनाया और ये जो एरे आया है इसका लेंथ तक चलेगा और वो पुट करते जाएगा यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक सब ठीक है। अब इसका लॉजिक आपको बताता हूँ मैं कैसे करना। एक लूप रन करेंगे, क्या करेंगे, लूप रन, सेम ऐसे लूप, पर ये लूप के बाहर लूप है तो एडिशन होता, लूप के अंदर लूप ही तो मल्टीप्लाई होता, लूप के अंदर लूप रही, नेक्स्टेड लूप रही तो n स्क्वायर, लूप के बाहर तो n प्लस n। ओके, तो अभी ये लूप चलेगी कितने बार, दिस लूप विल रन हाउ मेनी टाइम्स, कितने टाइम, 5 टाइम। ये एरे का अपना नंबर कितने हैं अपने, तो अभी i के अंदर क्या है, 0 है, तो मैं अज्यूम करता हूं कि मेरा जो i का इंडेक्स है वो मेरा फर्स्ट नंबर है, क्या है, तो अज्यूम करेंगे फर्स्ट इटरेशन में फर्स्ट नंबर क्या है, 2, इससे कुछ मैच होता तो मिल जाएगा, नहीं मिला तो आगे बढ़ेगा। सेकंड इटरेशन में फर्स्ट नंबर क्या है, 5, इससे कुछ मैच मिला तो वो सेकंड नंबर है, नहीं मिला तो आगे बढ़ेगा। और थर्ड इटरेशन में 11 मेरा फर्स्ट नंबर है, 15 मेरा फर्स्ट नंबर है, 10 मेरा फर्स्ट नंबर है, तो मेरा फर्स्ट नंबर वो है जिससे मेरा i इंडेक्स है, और सेकंड नंबर कौन सा होगा, अभी सेकंड नंबर मेरा क्या होगा, नहीं, अगर मेरा फर्स्ट नंबर 2 है, ओके, मेरा सम 13, सम क्या है, तो इफ माय फर्स्ट नंबर इज 2, माय सेकंड नंबर इज कौन सा है, मेरा सम 13 है, क्या बात है, तो अगर मेरा फर्स्ट नंबर 2 है तो माय सेकंड नंबर हैज टू बी 11 टू मेक अ सम ऑफ 13। माय फर्स्ट नंबर इज, जिसको आई पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट नंबर कौन है जिसको आई पॉइंट, सेकंड नंबर कौन सा होगा, जो इससे माइनस होगा, तो माय इंटीजर सेकंड नम विल बी क्या, सम माइनस ARR ऑफ i। ओके, ये इंटीजर मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है, फॉर लूप में चलेगा, चलेगा, नो प्रॉब्लम, यस नो मे बी। तो अभी मेरा अगर फर्स्ट नंबर मेरा अभी i क्या है, 2, हाँ ये फॉर लूप में निकालेगा वो, आपको चाहिए तो आप ऐसे कर दो, आपको ऐसा लग रहा है कि बार बार वो डिक्लेयर होगा हफ्ते बार, ऐसे कर दो,
तो मेरा फर्स्ट नम क्या है जिसको आई पॉइंट कर रहा, तो अभी फर्स्ट नम क्या है फर्स्ट इटरेशन में 2 है, और सेकंड नम क्या है Sum minus two क्या sum minus array of I. -2 which is what 11। अब अपने को सर्च करना है 11, अगर यहाँ मिलता है अपने को तो अपना काम हो जाता है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं दूंगा की, क्या दूंगा मैं, वो मुझे देगा वैल्यू, आम का झाड़ है, आप उसको पत्थर मारो वो आपको आम देगा, तो हम उसको क्या देंगे की, तो हमको क्या देगा वैल्यू, तो मैं कौन सी की दूंगा उसको, अभी सर्च करो सेकंड नाम करके कोई है क्या, आया समझ में, नहीं समझ में आया, तो अभी हम क्या करेंगे, इफ hs डॉट कंटेन्स क्या, कंटेन्स क्या, सेकंड नाम, अगर वो सेकंड नाम उसके अंदर है तो क्या कर दे, उसका क्या दे दे हमको, हाँ उसका उसका तो हम लोग उसको की देंगे, हमको वैल्यू देगा, राइट। तो फिर क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट तो आई में है और सेकंड हमको जो रिटर्न करेगा उसमें रहेगा, तो रिटर्न न्यू इंटीजर इक्वल्स टू, तो पहला कौन सा है आई, फर्स्ट नंबर किसमें है, आई में है, और सेकंड किसमें है hs डॉट गेट, तो हम उसको क्या देंगे की देंगे, तो की किसका कौन सा है सेकंड नम में, सर ये समझ गया सर, रिटर्न मैथ्स होता है ना there's no equal, तो ये तो ये हो गया, और फिर ये फॉर के बाद में अगर ये नहीं मिलता है तो क्या करेंगे अपन, थ्रो, क्या करेंगे थ्रो इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन नो सच डेटा, तो अभी ये जब कर दिया अपन ने, whenever you throw you have to throw an object, whenever you throw you have to throw an object, okay, now let's run this, तो मेरा इनपुट क्या है 13, इनपुट क्या है 13 का आउटपुट क्या आएगा 0 और आया। अब अगर मैं इनपुट कर देता हूँ 16, क्या कर देता हूँ इनपुट, हाँ 16, तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट कर देता हूँ मैं 25, सॉरी क्या आउटपुट मैंने, आपने आउटपुट कर दिया 250, तो नो सर डेटा इज एक्सेप्शन आ गया, आया समझ तो लोग को, आई एक्सप्लेन ऑन दिस कोड नाउ। मैप में मैप बनाया हमने, तो मैं चाहूँ तो हैश मैप इक्वल्स टू न्यू हैश मैप भी कर सकता हूँ, cc इज न्यू सी, या मैं चाहूँ तो पेरेंट का ही रेफरेंस रख के अब इस hs में मैं न्यू हैश मैप, न्यू लिंक हैश मैप, न्यू ट्री मैप सब कर सकता हूँ, ये सब उसके अम्ब्रेला में आता है। यस, फिर अपन ने क्या किया, इस फंक्शन को क्या पास कर दिया, वो एरे और वो सम, तो उसने क्या किया एरे को पूरा इटरेट किया, और एरे में तो की क्या बन गया मेरा वैल्यू, और वैल्यू क्या बन गया मेरा इंडेक्स, है ना, ये लॉजिक अपन ने यहाँ लगा, तो उसने और पुट कर दिया, ये सेकंड नम चाहिए, फर्स्ट नम जिसको आई पॉइंट करेगा, फर्स्ट इंडेक्स कौन है जिसको आई पॉइंट कर रहा है वो फर्स्ट इंडेक्स है, तो मेरा फर्स्ट नंबर अगर 2 है तो आई किधर है 0 पे है ना, ये मेरे आई के वैल्यू है, तो आई में क्या है अभी 0, तो फर्स्ट नंबर समझ रहे कि आई वाला इंडेक्स है, सेकंड नंबर क्या होगा, तो अगर आई में 2 है और 13 है मतलब क्या
तो 13 माइनस 2 यानी क्या चाहिए अपने को 11। 11 कौन से इंडेक्स पे है वो मुझे वैल्यू दे दो। तो वो किया है देखो। तो अगर एचएस में कंटेन सेकंड नंबर यानी 11 है क्या आपने एचएस में, तो ट्रू होगा, अंदर आएगा। मैं बोलूंगा गेट सेकंड नंबर, वो मैं उसको दे दूंगा की, मुझे क्या देगा वैल्यू। तो गेट ऑफ सेकंड नंबर गेट ऑफ 11, तो गेट ऑफ 11 क्या है 2 है, तो मुझे वो 2 दे देगा। तो मेरा आई में 0 है और यहाँ 2 आ गया, उसका मैंने एरे बनाया रिटर्न कर दिया। यहाँ उसको मैंने उसको 2 स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके डिस्प्ले कर दिया, समझा। लेट्स से अपन कर रहे हैं 22, क्या कर रहे हैं 22, तो 2 आया, सेकंड टर्म क्या होगा 20 है क्या किधर अलग। फिर 7 आया, नेक्स्ट इटरेशन में जब आई 1 बन जाएगा तो आई 7 आ गया, और सेकंड टर्म में क्या आएगा 15। हम देख रहे 15 है क्या अपने पास है, उसका इंडेक्स क्या है 3, तो फर्स्ट और 3 टर्म कर दो। तो इससे मेरा कितना हो गया ओनली n में, किसमें n, और एक n लगा मुझे पुट करने के लिए, तो 2n क्या हो गया, तो 2n। तो व्हाट इज 5 स्क्वायर 25, व्हाट इज 2 into 5 10। तो स्टिल मैंने हैंडसम अमाउंट डिडक्शन कर लिया। व्हाट इज 10 स्क्वायर, व्हाट इज 2 10 20, तो 100 का और 20 का 80% का मैंने डिडक्शन कर दिया उसका। आया समझ में। तो ये है हैश मैप का लॉजिक और